It's a sweet and simple chapter, छोटा सा chapter है, right? What are ether? What we have to study in this chapter? Ether. Definition of an ether, general representation of an ether, classification of an ether, preparation methods of an ether, reactions of an ether, and uses है बस. Okay, so we'll start with the first part, that is definition of an ether. Just check the structure of ether, ROR dash, right? Two alkyl group are attached to the oxygen atom, right? यहाँ पे second में क्या दिया, ROAR, where one is the alkyl group and second is the aryl group. Or what are the next possibility? There will be both the aryl group, that is AROAR, right? Means the two valency of oxygen atom, it is completed by the two alkyl group. That alkyl group may be same or different, one alkyl group, one aryl group, or both the aryl group. Okay, so ether are the compound which contain an oxygen atom bonded to two alkyl groups or two aryl groups or one alkyl and one aryl group. Simple, आप अपने word में लिख रहे हो, just check the general representation of an ether, ROR, और लिख दीजिए. Okay, so this is a simple definition of an ether. आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, इसमें ऐसा कोई particular explanation की जरूरत नहीं है. It is now ethers are actually considered as a anhydrides of alcohols also, right? And generally ethers are the organic oxides also. So according to the statement, ether are nothing but the compound which contain an oxygen atom bonded to two alkyl group or two aryl group or one alkyl and one aryl group. ठीक है. Now classification of an ether. ये classification of ether, that is also IMP part. Depending upon the presence of the alkyl group or aryl group in the molecule, ethers are classified into two types: simple ether and mixed ether. Simple ether, that is also called as a symmetrical ether, and mixed ether is also called as a unsymmetrical ether. देखो, right? Either we can use the word simple ether, which is called symmetrical ether, or mixed ether, which is called unsymmetrical ether. We have taken the example. Example के साथ में मैंने यहाँ पे general representation भी बताया हुआ है ether का. ROR. Here in the ROR, both alkyl groups are same, while AROAR, both aryl group attached to the oxygen atoms are same. So what is simple ether? So ether in which both the alkyl groups or both the aryl group attached to the oxygen atom are same are called as a simple ether. You can write it in your own words. Example is that CH3OCH3, like that. Now here both alkyl groups are methyl, so this belong to simple ether. Very simple, symmetrical ether. Second example is CCH5OCCH5. So here both the aryl groups are same, phenyl दोनों attach है, right? So that belong to simple ether. इसका exactly opposite क्या है? Mixed ether है. So in mixed ether, the alkyl group or two alkyl group or both the alkyl group attached to the oxygen atoms are different, while in the case of aryl group which is attached to the oxygen atoms are also different. So in the case of this example, we have taken a simple example, CH3OC2H5. So दोनों alkyl group अगर आप check करोगे तो अलग अलग है, one is ethyl and second is methyl. So depending upon the attachment of alkyl group or aryl group across the oxygen atom in ether, they are classified into two types, simple ether and mixed ether. What is simple ether? The ether in which both the alkyl groups or aryl group attached to the oxygen atom are same are called simple ether. What is mixed ether or unsymmetrical ether? Ether in which both the alkyl group or aryl group attached to the oxygen atom are different, that is called as a mixed ether or unsymmetrical ether. ठीक है. अगर क्वेश्चन ऐसा है, write the classification of ether for 2 marks. Simply आप लिखोगे classification of ether 2 marks कैसे लिखोगे? First, simple ether, उसका definition मतलब उसका statement, उसका example. You will get the 1 marks for that. Mixed ether, उसका statement और example. You will get the 1 marks like that. So this is a 2 marks question and it is already asked n number of time in the examination also, board examination also, right? So ये हो गया आपका first part of ether, that is definition of ether, and second is classification of an ether.
नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा इसका है ना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। नाउ according to the nomenclature of an ether, what is the nomenclature of an ether? Common name and IUPAC name, right? In the case of common name, we write the name of an ether in the format of dialkyl ether और अल्काइल अल्काइल ईथर। इसका मीनिंग देखो क्या है। डायल्काइल ईथर हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन बोथ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम। मतलब अगर सिंपल ईथर है तो उसके लिए आप डायल्काइल ईथर लिखोगे। जैसे पहला एग्जांपल देखो, पहला फर्स्ट एग्जांपल CH3O CH3। सो हियर both the alkyl groups are same, so we are written word dimethyl ether। ठीक है। अगर आप दूसरे के पास जाते हो तो ये बनेगा CH3O CH2 CH3। The two alkyl group across the oxygen atom are different, so as per the alphabetical order first we written ethyl and then methyl then ether, ethyl methyl ether, like that। Okay, so in this way depending upon the attachment of that alkyl group you have to write the name। Okay, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज करना है। कॉमन नेम के बारे में बात करना है हम लोग। नाउ कमिंग टू द आईपैक नेम। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है आईपैक नेम। द आईपैक नेम ऑफ ईथर विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ अल्कोक्सी अल्केन। मैंने क्या बताया? अल्कोक्सी अल्केन। देखो ये अल्कोक्सी अल्केन के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है अल्कोक्सी और दूसरा है अल्केन, राइट। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग। मैं पहले आपको है ना ये वाला एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल जो हमने किया है ना, इसको ये वाला करके देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो CH3O CH2 CH3 है जो सेकंड एग्जांपल है इथाइल मिथाइल ईथर, उसका आईपैक नेम कैसे आएगा? अभी प्रॉब्लम क्या है कि विच ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्सी एंड विच वन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन, ये प्रॉब्लम होगा, राइट। अल्कोक्सी में आप कौन सा डालोगे और अल्केन में कौन सा डालोगे, राइट। तो जनरली जो लार्जर अल्काइल ग्रुप रहेगा, मतलब जिसपे कार्बन एटम ज्यादा होगा, जैसे ये CH2 CH3 है, ये इथाइल ग्रुप है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है ना, वो जाएगा अल्केन में, ध्यान रखना। एंड द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद द ऑक्सीजन, मतलब ये मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पे CH3O, दिस इज द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद द ऑक्सीजन एटम दैट अंडरगोज इन द अल्कोक्सी। ठीक है, तो CA smaller alkyl group along with the oxygen atom RO group that will be called as a alkoxy and the larger alkyl group will get converted into alkene। तो अगर आप देखोगे ये CH3O है, वो क्या होगा? दैट इज योर मिथॉक्सी एंड 1,2 कार्बन एटम वाला अल्केन क्या बनेगा? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आप थर्ड एग्जांपल देखते हो, ये वाला थर्ड वाला, तो क्या होगा? CH3O CH2 CH2 CH3। now here in the case of CH2 CH2 CH3 there are 3 कार्बन एटम और ये आपका जो CH3O है उसमें एक ही कार्बन एटम है, तो CH3O कन्वर्ट होगा आपका अल्कोक्सी में एंड CH2 CH2 CH3 कन्वर्ट होगा आपका अल्केन में। बट यहाँ पे नंबरिंग करना जरूरी है बिकॉज सेम अल्कोक्सी ग्रुप कैन बी प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन एटम ऑल्सो, मतलब यहाँ पे भी अटैच हो सकता है इस पे। तो इस पे नंबर कैसे क्या है? देखो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसके लिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, मींस यहाँ पे नंबरिंग होगा लाइक दैट 1 2 एंड 3, 1 2 3। सो फर्स्ट पे मिथॉक्सी है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। और इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? वन इज मिथाइल, सेकेंड इज प्रोपाइल, सो दैट इज मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। इजी। तो दिस इज व्हाट योर नॉमेनक्लेचर पार्ट ऑफ ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे CH5OCH3 है, CH3 मिथाइल है, CH5 फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, दैट मिथाइल फिनाइल ईथर इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिजोल। स्पेशल नेम, ये स्पेशल नेम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है जरा। एनिलीन हो गया, एनिजोल हो गया, टोलिन हो गया, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसके रिएक्शंस बहुत आते हैं। CH5OCH3 दैट इज कॉल्ड एज एनिजोल और मिथाइल फिनाइल ईथर। इसी का आईपैक नेम क्या है? देखो अभी CH5 में टोटल 6 कार्बन एटम है और मिथाइल में तो एक है, तो ये मिथाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोक्सी में कन्वर्ट हो गया। तो आप यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, मिथॉक्सी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो छोटा अल्काइल ग्रुप है, छोटा अल्काइल ग्रुप मतलब क्या है? जिसमें
कम कार्बन एटम है, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोक्सी में, तो उसको मिथॉक्सी में कन्वर्ट कर दिया। और बड़ा जो है इसमें अभी अराइल ग्रुप है, तो इट इज अ बेंजीन। यहाँ पे फिनाइल मत लिखना गलती से भी, ठीक है। फिनाइल कब लिखते हो, जब भी वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेफिक्स में जाएगा और वो, यस यस, कॉमन में जाएगा वो, राइट, परफेक्ट है। वो अल्काइल जैसे है वैसे वो अराइल है, और ये बन जाएगा बेंजीन, लाइक दैट। तो आईयूपैक में वो बेंजीन बनेगा, राइट। ओके, नाउ सेम थिंग इन द नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 है, राइट। फिर से यहाँ पे 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे 6 कार्बन एटम है इन दिस, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपॉक्सी, क्योंकि 3 कार्बन एटम है। ओके, अल्कोक्सी प्रोपॉक्सी होगा एट फर्स्ट पोजीशन, मतलब ये हो गया ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन यहाँ पे फर्स्ट ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पे भी अटैच करोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर किसी ने प्रोपॉक्सी बेंजीन लिखा तो भी करेक्ट है, एंड 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन लिखा तो भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है, इसका कॉमन नेम देखो, ये फिनाइल है और ये एन प्रोपाइल है, तो इसको लिखा है फिनाइल एन प्रोपाइल ईथर, इजी। उसी तरह से आप अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा आपका, this is the compound where OCH3 group is there which is attached to second position, तो ये बन जाएगा 2 methoxy then 1,1 dimethyl cyclobutane। विल टेक n नंबर और एग्जांपल्स कुछ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग द कंपाउंड, यस बेटा, हाँ हाँ, एक मिनट किधर गया, एक मिनट, लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। या ये 1 और ये 2 ना, नहीं ईथर के केस में तो वो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करता है ना, हाँ लोएस्ट लोकेन रूल पे जाओगे आप। देखो जो सब्स्टिट्यूएंट में होता है ना, अल्कोक्सी सल्फिक सब्स्टिट्यूएंट में जाता है, Cl भी सब्स्टिट्यूएंट में जाता है, हैलोजन, बराबर ना। तो यस, हाँ अल्फाबेटिकल लेते हैं, राइट राइट राइट, ये थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन पे आपको थोड़ा कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। या आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। या अभी कॉमन नेम नहीं आएगा उसका, देखो देर इज अ लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक इन द कॉमन नेम में, कुछ तो कॉमन नेम है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे बेटा उसका, क्योंकि होगा ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है उसके इसमें। सो देर आर, सो देयर फॉर द नीड अराइजेस फॉर न्यू नेमिंग सिस्टम ना, इसलिए तो आईपैक नेमिंग जनरेट किया हुआ है। आईपैक में आप किसी भी कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हो, राइट। कॉमन नेम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, कॉमन नेम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, जिसमें हम लोग वी हैव अ लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक लिमिटेशन, सो देयरफॉर नीड अराइजेस फॉर न्यू नेमिंग एंड वी आर गिविंग आईपैक नेम, तो उसका कॉमन नेम नहीं बनेगा। ओके, सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ लाइक दैट, ये वाला एग्जांपल है मेरे पास इस तरह से, ठीक है। बताइए ये पर्टिकुलर कंपाउंड किसको बिलोंग कर रहा है, ईथर को बिलोंग कर रहा है, राइट। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस आईपैक, बताइए, कॉमन हो सकता है तो कॉमन भी, हाँ जी, यस बराबर, हाँ 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, राइट। तो यहाँ पे देखो आपने इसको नंबरिंग नहीं किया 1, बराबर ना, आपने इसको नंबरिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपने इससे नंबरिंग किया 1 2 3 एंड 4 लाइक दैट, एंड सेकेंड पे दैट OCH3 ग्रुप जो है वो सेकेंड पे है, इसके लिए आपने इसको मिथॉक्सी लिखा है, सो इसका आईपैक नेम क्या बन गया, 2 मिथॉक्सी, नहीं बेटा 4 कार्बन एटम है, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, राइट। ओके, ये आईपैक हो गया।
बट इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं क्या हम लोग? कैन वी राइट द कॉमन नेम फॉर दिस एग्जाम्पल? जल्दी 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 चेक. आइसो व्हाट आइसो, यस, आइसोब्यूटाइल, और आगे मिथाइल ईथर. राइट है? क्या लग रहा है? कुछ थोड़ा सा करेक्शन करो. ये आइसो बन सकता है क्या? वेदर इट इज एन आइसो कंपाउंड. कॉमन नेम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको. ये सिर्फ सिंपल है आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये इतने ही वर्ड आते हैं इसके अंदर. नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये आइसो नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेकंड पे मिथाइल है ही नहीं. ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा. नॉर्मल है, यस, चलो नॉर्मल भी है, बट उसमें टाइप ऑफ कार्बन एटम देखिएगा ना तो OCH3 अटैच टू द कार्बन एटम, दैट इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम. मैंने अभी 2 डिग्री लिखा है. आगे ध्यान में, ये सेकेंडरी कार्बन एटम पे OCH3 है, सो वी कैन राइट सेकेंडरी ब्यूटाइल. यस 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 यस, ये लिख देता हूं, फिर आइसो क्यों नहीं वो भी बताता हूं. सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. राइट? आगे ध्यान में, as OCH3 group is attached to secondary carbon atom. ये सेकेंडरी पे, आइसो क्यों नहीं मैं बताता हूँ. सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम. ये हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया ये, क्योंकि ये बोर्ड में पूछते हैं और बच्चे आइसो ब्यूटाइल ही लिखते हैं. ऐसा है. ठीक है, ये हो गया. अभी आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपने पूछा है कि सर आपने आइसो ब्यूटाइल इसको क्यों नहीं लिखा. अभी मैं सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा. ठीक है, देखिए, ये मैंने लिखा है CH3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH, और ये बन गया CH3. ठीक है, ये हो गया CH2O CH3. दोनों में डिफरेंस है, अभी पता चल गया. दिस पर्टिकुलर, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे OCH3 इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम. व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट कार्बन एटम? दैट इज द सेकेंडरी. यहाँ पे आइसो के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. CH3 twice CH compulsory at one end of the carbon chain. CH3 twice CH, this should be an iso condition. अगर ये नहीं है एक भी एंड में तो वो आइसो नहीं बनेगा. ठीक है, तो CH3 twice CH है. ये देखो सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड पे किधर मिथाइल ग्रुप है? ये तो फर्स्ट पोजीशन है इसका, और ये सेकंड कार्बन एटम पे अगर आप देखोगे तो ये इथाइल ग्रुप आ रहा है या CH2 ग्रुप आ रहा है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस कंपाउंड. अभी अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 4 कार्बन एटम इसमें है, एंड सेकेंड पे आपका मिथाइल ग्रुप है, एंड इट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन CH3 twice CH, सो देयरफॉर इट इज आइसोब्यूटाइल. ये आइसोब्यूटाइल बन गया और ये मिथाइल बन गया, तो इसका कॉमन नेम आएगा आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर. आ गया ध्यान में? बराबर. इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? हाँ बोलो ना, सॉरी प्लीज बोलिए. फर्स्ट पे हो गया. समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? यस, ये बना है. हाँ हाँ हाँ, यस. तो वो टर्शरी हो जाता था. CH पे लगा रहते तो H हटा दोगे. हाँ, टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा फिर वो. बराबर ना? तो H निकल जाएगा और वहां पे टर्ट आ जाएगा ना, तो वो टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा फिर. बराबर, टर्शरी हो जाएगा वो. और नियो के केस में थोड़ा सा अलग है, ये भी ध्यान देना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ वो. देखो पहले ये आप ध्यान दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. हाँ प्लीज ध्यान देना, बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. राइट? यहाँ पे एक्चुअली कैसा है कि दोनों के केस में मेटामेरिज्म का एक कंसेप्ट होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है फिलहाल. ये टेक्स्ट बुक में, करंट टेक्स्ट बुक में दे आर नॉट गिवन द कंसेप्ट ऑफ मेटामेरिज्म. राइट? बट आपको मेंस या एडवांस में रहेगा मेटामेरिज्म कंसेप्ट, तो उसमें पता चलेगा आपको. ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसमें डिफरेंस क्या है? सेकेंड के केस में देयर इज अ मिथाइल ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशन एंड इट सेटिस्फाइड दिस आइसो कंडीशन. ओके, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. बट इसका आईयूपैक नेम कैसे करोगे? कैन एनीवन गिव द आईयूपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड? बता सकते हो? सेकेंड वाले का आईयूपैक नेम बता सकते हो?
जल्दी। यस, चलो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3। करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन चेक कर लेते हैं हम लोग प्रॉपरली। आगे आगे ध्यान में, ये नंबरिंग कैसे होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा, राइट। आपने क्या बताया, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, मिथॉक्सी और मिथाइल में आप पहले कौन सा लिखोगे अल्फाबेटिकली, मिथाइल लिखोगे या मिथॉक्सी लिखोगे? पक्का, श्योर? अगर हाँ तो क्यों? यस 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 यस, अल्फाबेटिकली आपको पूरा लेटर चेक करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अल्फाबेटिकली आप पहले क्या लिखोगे, मिथॉक्सी लिखोगे, राइट। आ गया? हाँ जी। बाकी के लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मिथॉक्सी क्यों लिखा है आपने पहले, है ना, METHO और यहाँ पे METHY, तो O और Y में कंपेयर करोगे तो पहले आपका आ जाएगा O, तो आपको मिथॉक्सी पहले लिखना पड़ेगा। आगे ध्यान में, तो इन्होंने जो बताया दैट इज परफेक्ट नेम, दैट इज 1। अभी ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो ये आप लिखोगे 1 मिथॉक्सी, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 मिथाइल। देखो ये इथर को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए पहले लिख रहे हैं अल्कोक्सी में, फिर बन जाएगा 2 मिथाइल, राइट, यस और नो। और फिर बनेगा 3 कार्बन एटम है, तो वो बनेगा प्रोपेन। इजी? एनी डाउट? कुछ डाउट है तो आप नॉमेनक्लेचर के कुछ कर लीजिए फटाफट से। इसके अंदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं, फिर आज कंप्लीट करना है हमें, विल टेक थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, तो उसके बाद कुछ टाइम बचेगा तो मेरे पास एक नॉमेनक्लेचर का शीट भी है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट दी, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। नाउ विल गो विद द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फटाफट से देख लेते हैं। So there is only two methods of preparation of an ether. One is dehydration of alcohol and second is Williamson synthesis. अभी ये Williamson synthesis को हमें वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव में Williamson synthesis आपने पढ़ा हुआ है ना, रिएक्शंस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड दैट इज RX का, तो फिर से आ गया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है, dehydration is nothing but the removal of water. D stand for removal, hydration मतलब water, removal of water from an alcohol। अगर अल्कोहल में से आप वाटर निकाल देते हो तो उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, राइट। सो हियर व्हेन यू आर रिमूविंग, means when alcohol react with an H2SO4 at 413 Kelvin, फिर से आप मैं रिपीट कर रहा हूं, when you are reacting alcohol with H2SO4 at 413 Kelvin. So what happens? So it will use the corresponding ether. But what is the drawback of this reaction? I have taken the two molecules of ethyl alcohol C2H5OH. When it is react with an H2SO4 at 413 Kelvin, it eliminates the water molecule and we get the final compound as ethoxy ethane. इसका रिएक्शन में करके बताऊंगा, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन इज वी कैन प्रिपेयर ओनली द सिंपल ईथर। सिंपल ईथर ही बना सकते हो डिहाइड्रेशन से, क्योंकि दोनों अल्कोहल सेम लेना पड़ेगा, आप अलग अलग अल्कोहल नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कुछ भी मिलेगा, दैट इज योर सिंपल ईथर। सो इसका रिएक्शन कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ओके। एक मिनट, ये भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग रिएक्शंस चेक लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस इज वेरी सिंपल, अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद द सोडियम अल्कोक्साइड, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो ये बनेगा NaX, निकल के आपको मिल जाएगा ROR, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली सेम अल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज रिएक्ट विद द सोडियम एरोक्साइड, तो वो क्या करेगा, NaX निकल के आपको ROAR, मतलब आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर कंपाउंड। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, देखो CH3CH2Cl, that is ethyl chloride, when it is react with the CH3ONA, सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्ट किया तो NaCl एलिमिनेट होकर आपको मिल जाएगा CH3CH2OCH3 एंड NaCl, राइट। अभी ये जो डिहाइड्रेशन का मैं एक स्लाइड लेता हूँ और उसमें हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ डिहाइड्रेशन। देखो क्या होता है डिहाइड्रेशन में, सिंपली वी कैन राइट लाइक दैट, दैट इज CH3 2H5
C2H5OH, ये बनेगा आपका एक अल्कोहल। दो मॉलिक्यूल लिया है ना आपने, तो दूसरा अल्कोहल मैंने लिखा है OH C2H5, इस तरह से सेपरेटली लिखा हुआ है, चलेगा। दो C2H5 को हमने सेपरेटली लिखा है। व्हेन इट इज रिएक्ट विद एन एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड, ये इसमें वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बट इसमें थोड़ा अलग होता है कि H2SO4 से किस तरह से रिएक्शन होता है। H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो वो होगा क्या, इट विल एलिमिनेट द वाटर मॉलिक्यूल एंड बट द टेम्परेचर शुड बी व्हाट 413 केल्विन, राइट, कंपल्सरी याद रखना। और आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, C2H5, उसके बाद O C2H5 ether plus H2O like that. Okay, so here we are getting the compound like that, that is diethyl ether या फिर ethoxy ether, but the drawback of this reaction we can prepare only the simple ether, but from Williamson synthesis we can prepare the mixed ether also. Okay, तो ये हो गया आपका, we can write 2C2H5OH in presence of H2SO4, but एक बहुत IMP कंडीशन है, अगर टेम्परेचर, राइट, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान, आ गया ना ये वाला रिएक्शन समझ में, बट अगर आप सेम अल्कोहल लोगे, बट टेम्परेचर जो अगर आपने इसमें 443 किया, 443, तो वो अल्कीन देगा। मतलब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इट अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगर इथाइल अल्कोहल है इस तरह से CH3 CH2OH, इसमें अगर H2SO4 यूज किया है आपने, H2SO4, तो वो 443 केल्विन पे अगर आप रिएक्ट करोगे, देखो डिफरेंस क्या है, ईथर बनाना है तो 413 केल्विन होना चाहिए, 413 केल्विन, और अगर आप 443 केल्विन पे करते हो तो वो ये बीटा एलिमिनेशन में चला जाएगा, बीटा पोजीशन पे एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। तो ये बनेगा आपका अल्फा और ये बन गया बीटा, तो यहां से OH निकलेगा और यहां से आपका H एलिमिनेट होके आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O लाइक दैट। तो ध्यान रखना, alcohol when it is heated with H2SO4 at 443 Kelvin, so it gives alkene, it undergoes elimination reaction, जो elimination reaction हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है, राइट। ओके, इवन आपके अल्कोहल चैप्टर में भी है, एंड सेम अल्कोहल व्हेन इट इज रिएक्ट विद द H2SO4 at 413 Kelvin, so it will use the ether, इजी। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ये इजीली हो गया। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगर डाउट्स है तो वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, राइट। सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इन शॉर्ट दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, रिएक्शंस ऑफ ईथर। ओके, प्रिपरेशन हो गया, अभी रिएक्शंस पे आ रहे। सो व्हेन वी आर रिएक्टिंग ईथर विद द डिफरेंट रिएजेंट, ये ईथर है, देखो मैंने एक नॉर्मल लिया हुआ है ROR, है ना। व्हेन रिएक्ट विद द, ये जनरल रिएक्शंस है, इसके अंदर सिर्फ ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी सारे जनरल रिएक्शंस है। वी टेक एन एग्जांपल्स आल्सो। सो ROR ईथर व्हेन इट इज रिएक्ट विद द hot and dilute H2SO4, so when it is reactions of ether with the dilute sulfuric acid in generally, so it will use the ROR simple ether like that, means यहाँ पे it will use the alcohol, sorry, so simple ether, इसमें जो रिएक्शंस करना है हमें H2SO4 के साथ, उसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू रिएक्ट सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। इसको मैंने बाइफरगेट किया आगे, वी विल रिएक्ट सिंपल ईथर with H2SO4 H plus, right, as well as mix ether with H2SO4 H plus. So actually ये होता है आपका hydration, or we can say it undergoes hydrolysis to give alcohol. So that simple ether when it is react with an H2 and